आचार्य चिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो Morning. આપણે આજે આપણે પ્રતિક્રમણ 6 આવશ્યક આ ટોપિક આપણે લીધો છે. જનરલી હવે પર્યુષણ આવી રહ્યા છે. અચલગચ્છના જે સમાચારી ફોલો કરે છે એમનું પતી ગયા છે પર્યુષણ, પણ બાકી બધાના લગભગ મને લાગે છે 12 સપ્ટેમ્બરથી પર્યુષણ ચાલુ થઈ રહ્યા છે. અને પર્યુષણમાં આપણે આમ જનરલી તો પ્રતિક્રમણ રોજ નથી કરતા હોતા, પણ પર્યુષણમાં આપણે ટ્રાય કરીએ કે એટલીસ્ટ એક ટાઈમ આપણે બધા પ્રતિક્રમણ કરીએ. તો પ્રતિક્રમણ તો આપણે બધા જ કરીએ છીએ, પણ જેમ આપણે કીધું છે કે દરેક ક્રિયા આપણી, જો એ ક્રિયા આપણે ભાવપૂર્વક કરીએ તો એ આપણને મોક્ષ માર્ગ માટે આરાધક બની શકે. આપણે કેવળ ત્યાં બેસીએ અને જો એ ક્રિયામાં આપણો ઉપયોગ ના હોય, એ ક્રિયાના આપણે અર્થ ના સમજ પડે, તો એ ક્રિયા બહુ તો થોડું ઘણું પુણ્ય બંધ કરાવી શકે, પણ કર્મની નિર્જરા કે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે એ આપણને હેલ્પફુલ ના થઈ શકે. એટલે હવે જે આપણે પ્રતિક્રમણ જે આપણે હવે કરવાના છીએ, એકચ્યુઅલી તો આ પ્રતિક્રમણ રોજ કરવાના છે. એને કીધેલું જ છે એને આવશ્યક ક્રિયા. આ જે પ્રતિક્રમણ આપણે બોલીએ છીએ, ઇટ્સ કમ્પાઇલ્ડ ઓફ 6 આવશ્યક. એટલે આ આવશ્યક એટલે શું? આ જૈન ધર્મની અત્યંત મહત્વની ક્રિયા છે આવશ્યક ક્રિયા. આવશ્યક ક્રિયા અને નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે કે અવશ્ય કરવા યોગ્ય ક્રિયા. જે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ એ શું છે? એમાં 6 આવશ્યક એ કમ્પાઇલ થયેલું છે. અને આ જે આવશ્યક છે એ રોજ સાધકને કરવાના છે. અને શેના માટે આ કરવાના છે? તો આપણે આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે જે અનુષ્ઠાન છે, અલગ અલગ અનુષ્ઠાન આપેલા છે. તો આ અનુષ્ઠાન શેના માટે છે? કે આપણા પાપથી આપણે વિશુદ્ધ થવા માટે આ અનુષ્ઠાન કીધેલા છે 6 આવશ્યક. અને વ્યવહારમાં આપણે એને પ્રતિક્રમણ કહીએ છીએ. તો આ 6 પ્રકારની ક્રિયાઓ કઈ છે? આપણે બોલીએ છીએ પ્રતિક્રમણ, પણ એકચ્યુઅલી એમાં 6 ક્રિયાઓ આવે છે. તો કઈ છે આ 6 આવશ્યક ક્રિયાઓ? તો પ્રથમ તો જે પ્રતિદિન કરવાની છે, અને એક વખત નહીં, દિવસમાં 2 વખત કરવાની છે, સવારના અને સાંજના. પણ આપણે એટલીસ્ટ એ પર્યુષણમાં કરીએ છીએ તો એ જ આપણે સમજપૂર્વક કરીએ, એના માટે આ આપણે આજનો ક્લાસ લીધેલો છે. તો આ 6 આવશ્યક એટલે કે 6 ક્રિયાઓ કઈ છે? તો પ્રથમ છે સામાયિક, પછી ચતુર્વિંશતિ સ્તવ એટલે કે લોગસ, ત્રીજું છે વાંદના એટલે ગુરુ વાંદના, પછી ચોથું પ્રતિક્રમણ, પાંચમું કૌશક, અને છઠ્ઠું પચખાણ અથવા પ્રત્યાખ્યાન. તો આ જે ચતુર્વિધ સંઘ છે, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા, આ બધા માટે સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ આ ક્રિયાઓ અવશ્ય કરવાની છે. એમાં આપણે ખબર છે કે જે પંચમહાવ્રતધારી સાધુ સાધ્વી હોય એ તો આ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા રોજ જ કરતા હોય છે, 2 ટાઈમ કરતા હોય છે. અને આનું કથન આવશ્યક સૂત્રમાં આપેલું છે. તો આ શેના માટે આ આવશ્યક ક્રિયાઓ કરવાની છે? તો જે અનાદિકાળથી આપણને જે કર્મમાં લાગ્યો છે એ દૂર કરવા માટે, અને સાથે સાથે નવા એ દૂર કરવા માટે એટલે કર્મની નિર્જરા કરવા માટે,
નવા આવતા કર્મોને રોકવા માટે, એટલે કે અહીંયા સંવર કરવા માટે. એવી જ રીતે જે કષાયો છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કે જેના લીધે આપણને નવો કર્મબંધ થાય છે, એ કષાયોનો પણ નાશ કરવા માટે, એટલે આ બધાથી આપણે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ વધી શકીએ, તો એના માટે આ અદ્ભુત ક્રિયાઓ શાસ્ત્રમાં બતાવેલી છે, કે જેનાથી આપણા આત્માની વિશુદ્ધિ થાય. એટલે આ ક્રિયાઓ કોઈ પણ સાધક માટે આવશ્યક કર્તવ્ય રૂપ છે, અને એટલે જ એનું નામ આવશ્યક ક્રિયા આપેલું છે. હવે આપણે કર્મો તો રોજ આપણા બંધાતા જ હોય છે, બરાબર. દરેક સમયે કર્મ બંધન થતું હોય છે. તો એ કર્મના પણ અલગ અલગ એમાં જે બાંધીએ છીએ એમાં પણ પ્રકાર છે. એમાં જે નિધત્ત કક્ષાના કર્મ છે, નિકાચિત હોય, નિધત્ત હોય, તો જે નિધત્ત કક્ષાના જે કર્મો હોય એ શું થાય છે, જો આપણે રોજ પ્રતિક્રમણ કરીએ તો એ નિકાચિત કક્ષાના થતા અટકી જાય છે. તો આ નિકાચિત કર્મ એટલે શું? નિકાચિત કર્મ એટલે જે કર્મ અવશ્ય ભોગવવા જ પડે. જે આપણે બધા કર્મો તો ઘણા બધા બાંધીએ છીએ, પણ જ્યાં સુધી એ કર્મો સત્તામાં હોય, ઉદયમાં ન આવે, ત્યાં સુધી આપણે એ કર્મમાં ફેરફાર કરી શકીએ, એની નિર્જરા પણ કરી શકીએ છીએ. એક વખત ઉદયમાં આવ્યા પછી ન થાય. પણ જે નિકાચિત કક્ષાના કર્મ હોય એમાં ફેરફાર ન થાય, એ તો ભોગવવા જ પડે. જેમ કે મહાવીર સ્વામીને જે ખીલા ઠોકાણા કાનમાં, એ એમનો કર્મ કયા હતું? તો એ નિકાચિત કર્મ બાંધ્યું હતું, કે જે એમને આટલી સાધના કરવા છતાં પણ એ કર્મ એમનું નિકાચિત કક્ષાનું હોવાથી એ એમને ભોગવવું જ પડ્યું. તો અહીં કીધે છે કે જે એવા કર્મો છે કે ભોગવ્યા વિના પણ જેનો ક્ષય કરી શકાય, તપથી વગેરે નિર્જરા કરી શકાય, તો એને કહેવાય નિધત્ત કક્ષાના કર્મો. તો જ્યારે આપણે રોજ આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ, પ્રતિક્રમણમાં શું કરીએ? આપણે પાપનું પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ. પાપ માટે આપણે ઈચ્છામી દુક્કડમ જ્યારે દિલથી માંગીએ છીએ, તો શું થાય છે? ત્યારે એ પાપની કક્ષા નિધત્ત કક્ષાની બની જાય છે. એટલે मैडम हिंदी में आ, हिंदी में बोलेंगे क्या आप? शिक्षा बेन आज हिंदी में बोलूं क्या? ठीक है, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलती हूँ, बाकी गुजराती में, क्योंकि आज बहुत जन है और सब लोग, आई होप कि बधाने हिंदी तो समझ पड़से, वांधो नहीं आवे. ओके, ठीक है, चलो. तो आपने इतना समझा? हाँ इतना तो समझा, निकाचित है बोल रहे आप। तो और नहीं समझ पड़ेगी क्या गुजराती में आपको? मतलब थोड़ा थोड़ा तो पुराना जो समझा हुआ है उसी के हिसाब से हिसाब लगाया। ठीक है. तो जब भी हम पाप का प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये क्या होता है? पाप की कक्षा निधत्त कक्षा की हो जाती है. इसीलिए ये आवश्यक क्रिया हर एक साधक को अवश्य करने योग्य है. अभी हम जो बाकी के सब जो धर्म देखते हैं, वो धर्म क्या होता है? जनरली द्रव्य पुण्य उपार्जन करने पे भार रखते हैं. इवन हम देखते हो हमारी बाई वगैरह होती है, वो अभी श्रावण महीने में कितने सारे उपवास वगैरह करती है, बराबर है. अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, वगैरह वगैरह. तो बेसिकली पुण्य के लिए वो जो भी तप वगैरह करते हैं, तो उस पे वो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं. परंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं है. जैन धर्म क्या करता है? वो बोलता है कि आप पुण्य को गौण करो. और उन जैन धर्म में ज्यादा इम्पोर्टेंस किसने दिया गया है? तो संवर और निर्जरा लक्षी धर्म की स्थापना की गई है, क्योंकि जैन धर्म मोक्ष लक्षी है. और मोक्ष लक्षी होने से लिए सबसे प्रथम मोक्ष के लिए क्या करना है? तो सबसे प्रथम संवर धर्म का आचरण करना है. तो संवर धर्म यानी क्या? कि जो कर्म हमारे आत्मा में आते हैं, वो कर्मों को आने से हमको उनको रोकना है. तो वो नए कर्म आने से जो रोकते हैं वो प्रक्रिया है,
उसको संवर बोला जाता है। तो ये जो षड आवश्यक की जो 6 क्रियाएं हैं, ये क्रिया क्या है, संवर कारक ही है। और ये संवर का परिणाम फल क्या होता है, निर्जरा में भी आता है। निर्जरा यानी क्या, जो पुराने कर्म ऑलरेडी हमारे आत्मा में है, उस कर्मों का क्षय करना, वो है निर्जरा। तो निर्जरा यानी जो आत्मा पे जो कर्म बंधे हुए हैं, वो कर्म आत्मप्रदेश से उसका क्षय होना, ये निर्जरा है। और निर्जरा जितना आपका कर्म का क्षय होता जाएगा, उतना जो हमारे आत्मा में जो अनंत गुण है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, तो वह क्या होएगा, वो गुण ज्यादा और ज्यादा खिलते जाएंगे। क्योंकि हमको पता है हमारे आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन उस पे आवरण आया है कर्मों का। तो जैसे जैसे ये कर्म मीन्स निर्जरा होती जाएगी, तो वैसे वैसे वो गुण क्या होते हैं, पूर्णपणे प्रकट होने में मदद होगी। तो अभी इधर दो चीज है, एक तो नया कर्म का आना, तो हम चलो नए संवर करें। संवर यानी क्या, कि नए कर्म आते हैं उनको हम रोक दें, लेकिन पुराने कर्म ऐसे ही पड़े हैं तो भी मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसी तरह हम जो पुराने कर्म पड़े हैं हमारे संचित, अनंत काल से पड़े हैं ना, कितने सारे कर्म हैं, उनकी हम निजरा करें, लेकिन नए जो कर्म आते हैं उनको जो हम उनको ना रोके, तो भी मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि हम नाव में बैठे हैं और नदी पार करने जा रहे हैं, और नाव में एक छेद हुआ, तो क्या होएगा, छेद से पानी अंदर आने लगा और वो नाव क्या होती है, वो नाव डूबने लगती है। तो अभी हमको तो डूबना नहीं है, तो क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी वो पानी निकालते जाएंगे, चलो सब निकालो निकालो पानी। तो क्या होएगा, हम वो नाव डूबेगी नहीं अंदर। लेकिन अब खाली पानी निकालोगे और वो छेद को बंद नहीं करोगे, तो क्या होएगा, नया पानी आता ही जाएगा, आता ही जाने का। तो क्या होएगी, वो नैया डूबने वाली है। और द सेम टाइम वो आप छेद को बंद करेंगे, लेकिन पुराना जो पानी ऑलरेडी भरा हुआ है वो नहीं निकालोगे, तो भी आपकी नैया डूबने वाली है। तो आपकी नैया को नहीं डुबाना है, तो आपको क्या करना है, दूसरे किनारे जाना है सही सलामत। तो पहले तो वो छेद बंद करना है जहां से पानी आ रहा है, और जो ऑलरेडी आया हुआ पानी है उसको निकालना है। अभी यही चीज हम आत्मा पर घटाते हैं कि कभी हमारा मोक्ष प्राप्ति कभी होएगी, जो पुराने पहले तो जो नए कर्म आते हैं वो आने को आप बंद करो, जिसको हम संवर बोलते हैं। और जो पुराने कर्म ऑलरेडी है उसका क्या करो, उसका आप निर्जरा करो, उसका क्षय करो। तो इसीलिए ये जो मोक्ष प्राप्ति जो अपनो करना है, तो इसमें संवर और निर्जरा दोनों जरूरी है। तो ये जो 6 आवश्यक की क्रियाएं जो अभी हम देखने जा रहे हैं, वो क्या है, दोनों काम करते हैं। संवर प्रथम संवर कराते हैं और बाद में निर्जरा यानी के कर्मक्षय कराती है। और इसीलिए वो अवश्य ये 6 क्रियाएं क्या है, मोक्षदायक है। इस आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अभी ये जो 6 क्रिया हमने बोली कौन सी है, आपको ध्यान रखना है, सामायिक, चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और पचखान। अभी ये पहला हम ये देखें कि ये जो आवश्यक क्रिया है वो उसका रचना काल क्या है, कभी इसकी रचना हुई। तो जब भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी देव आके समोसरण की रचना करते हैं और तीर्थंकर परमात्मा उधर बैठ के देशना देते हैं। उसके पहला तभी वो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। चतुर्विध संघ यानी साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। और ये चारे जन को
मीन्स ये तीर्थ स्थापना करते हैं, उसी दिन चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। और ये सबको दोनों टाइम, सुबह और शाम, दोनों टाइम ये प्रतिक्रमण करना अनिवार्य कहा गया है, आवश्यक कहा गया है। इसीलिए जब भी तीर्थ स्थापना करते हैं तो उसी के प्रथम दिन ही गणधर भगवान यानी कि तीर्थंकर परमात्मा के मुख्य शिष्य, वो तीर्थंकर परमात्मा का जो उपदेश होता है उसके अनुसार ये आवश्यक सूत्र भी रचना करते हैं। जैसे कि द्वादशांगी की जो रचना होती है, द्वादशांगी यानी 12 अंग, जो हम बोलते हैं कि जो 45 आगम है, और स्थानकवासी के अनुसार 32 आगम से, उसमें मेन कौन से है, 12 अंग है। आचारांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, कृतांग सूत्र, स्थानांग सूत्र वगैरह 12 अंग है। तो उनके साथ ये उसके बाद में तो जो 45 या 32 बोलते हैं बाद की सूत्र की, बाद में जो गीतार्थ आचार्य थे उनके द्वारा रचना की गई है। उसमें एक आवश्यक सूत्र आता है, मेरे ख्याल से 4-6 सूत्र है, उसमें ये आवश्यक सूत्र आता है। वो भले बाकी के सूत्र आचार्यों की रचना होगी, लेकिन ये आवश्यक सूत्र की रचना पहले ही दिन, तीर्थ स्थापना के ही दिन, गणधर भगवान तीर्थंकर परमात्मा के उपदेश के अनुसार करते हैं। बराबर। अभी और ये करते हैं, और ये साधक, चतुर्वेद संघ के साधक उसके अनुसार क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अभी ये जो 6 आवश्यक की क्रिया है, तो 24 तीर्थंकर भगवान है, उसमें जो प्रथम ऋषभदेव भगवान और अंतिम महावीर स्वामी, इनके शासन के जो चतुर्विध संघ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, उनके लिए ये कंपलसरी है, मीन्स अनिवार्य है। लेकिन जो बीच के 22 तीर्थंकर भगवान थे, उनके साधु साध्वी श्रावक श्राविक के लिए ये मीन्स करना है, लेकिन अनिवार्य रोज करना ही है ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों है, तो वो भी हमको समझना है कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के जो साधु थे, वो कैसे थे, रुजु थे और जड़ थे। और जो 22 तीर्थंकर के भगवान के साधु थे, बीच वाले 22 तीर्थंकर मीन्स अजितनाथ भगवान से करके पार्श्वनाथ भगवान तक थे, वो कैसे थे, साधु रुजु थे और प्राज्ञ थे। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय के साधु साध्वी श्रावक श्राविका, हम लोग कैसे हैं, वक्र है और जड़। तो अभी एक समझो, जो प्रथम तीर्थंकर के कैसे थे, रुजु और जड़ थे, और हम लोग कैसे हैं महावीर के शासन के, वक्र और जड़। जड़ यानी क्या, जड़ है तो भूल होना संभव है, और भूल होती है तो वो भूल की प्रायश्चित तो करना ही है। इसीलिए, और इसमें भी इसलिए वो फर्स्ट तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के जो संघ है चतुर्विद, उनको बोला गया है क्योंकि आप लोग जड़ हो, तो आपको भूल होना है, तो वो भूल का प्रायश्चित भी करना है। और उसी में भी जो महावीर स्वामी के समय के जो हम लोग हैं, वो साथ में वक्र भी है, यानी भूल तो हुई, और उसमें जो किसी ने आपको भूल बताई, तो हम वो भूल को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होते, तो कैसे है, वक्र है। इसीलिए ये दोनों के महावीर स्वामी और ऋषभदेव, तो वो लोग वो वक्र नहीं थे, वो सरल थे, लेकिन जड़ थे। जड़ता तो दोनों में ही है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि सुबह और शाम जो भी आपके दिन के जो भी पाप हुए हैं, और जो रात को पाप होते हैं, वो सुबह में प्रतिक्रमण करना है, दिन भर पाप करते हैं वो शाम को प्रतिक्रमण करना है। और ऐसे क्या करना है, वो पाप से आपको उधर आपका प्रायश्चित करना है। तो ऐसा ये दिया गया है, क्योंकि ये जो है, ये चारित्र का दोष है। जो भी आपसे जो भी क्या बोलते हैं, रॉन्ग एक्ट जो एक्ट होता है, वो चारित्र का दोष है। और हमको मोक्ष मार्ग में जाना है, तो क्या करना है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र,
तीनों की आराधना करना है। सम्यक मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता रूप आराधन जरूर है। तो ये आवश्यक क्रिया है, ये सम्यक चारित्र का एक पार्ट होता है। तो अभी हमने भूमिका देखी 6 आवश्यक थी। अभी हम ये 6 आवश्यक है वो एक के बाद एक समझेंगे। प्रथम आवश्यक है सामायिक आवश्यक। सबसे पहला ये आत्म विशुद्धि की जो पूरी प्रोसेस है उसमें सबसे प्रथम स्थान दिया गया है सामायिक को। बराबर थी। तो सामायिक यानी क्या? सम प्लस आय प्लस इक। तो सम यानी समता भाव, मीन्स राग द्वेष रहित परिणाम। समता भाव यानी नहीं राग और द्वेष खाली नहीं, राग भी नहीं। तो वो जो समभाव है वो पहला सम आएगा। फिर आय मीन्स ये समभाव के कारण जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग का जो लाभ है उसको यहाँ आय बना गया है। और जो इक, सम प्लस आय प्लस इक, तो ये जो समता भाव से जो मोक्ष मार्ग का जो लाभदायक भाव प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, तो वो है सामायिक। यानी जो समत्व भाव से हमको मोक्ष मार्ग का जो भाव परिणाम उत्पन्न होता है, ये सामायिक है। अभी ये सामायिक है, जो पंच महाव्रतधारी जो साधु भगवंत है उनके लिए ये सामायिक तो जीवन भर का रहता है। लेकिन हमारे श्रावक के लिए ये हम एक निश्चित काल मर्यादा इसमें दी गई है। कितना है? 48 मिनट्स का, हम 2 घड़ी भी उसको बोल सकते हैं। और जब भी हम सामायिक लेते हैं तो हम कौन से सूत्र का उच्चार करते हैं? करेमी भन्ते, है ना? करेमी भन्ते सामायम सावज्जम जोगम पचखाय पचखामी जानियम पजुआ स्वामी दुविहम तिविहेणम मणेणम वायाए कायणम न करेमी न कारवेमी तस भन्ते पडिक्कमामी निंदामी गरियामी पाणम ओसिरामी। तो ये सूत्र से हम सामायिक में सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। इसमें जो जाव नियमम पजुआ स्वामी, ये जो वर्ड्स है इससे सामायिक का समय हम निर्धारित करते हैं। हम अभी बताया ऐसा, जो गृहस्थ है वो कम से कम कितना 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स तक वो सामायिक ग्रहण करता है। और जो दूसरा उसमें सावज्जम जोगम पचखामी, इसका अर्थ क्या होता है कि वो जो ऊपर जा नियम पजुआ स्वामी जो आपने निर्धारित समय जो नक्की किया है कि 2 घड़ी का है, तो वो समय तक सावज्जम जोगम पचखामी। सावज्य मीन्स सावध्य, जो पाप प्रवृत्ति है। सावध्य मीन्स क्या? जो भी पाप प्रवृत्ति है उसको हम सावध्य जोग बोलते हैं। वो न पचखामी मीन्स अभी ये टाइम तक मैं कोई भी सावध्य योग की प्रवृत्ति यानी कि कोई भी पाप प्रवृत्ति नहीं करूंगा। यानी कि ये टाइम तक मैं और 6 काय के जो जीव है उसको सबको मेरे तरह से अभयदान है। 6 काय के जीव तो सबको पता है। एक पहला तो मीन्स एकेंद्रिय का 5 प्रकार, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय। और फिर मीन्स दूसरे जो बेंद्रिय से करके, दूसरा बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये दूसरे, तो टोटल मिलके ये 6 काय के जीव है। स्थावर, स्थावर में 5 और बेंद्रिय से करके पंचेंद्रिय तक, जो हम उसको त्रस जीव बोलते हैं। तो ये और 6 काय के जीव को हम अभयदान देते हैं। तो इसमें क्या, कैसा अभयदान? हम सामायिक जब भी ग्रहण करते हैं तभी हम लाइट पंखा चालू नहीं करते हैं। तो यही रीजन है क्यों हम लाइट पंखा चालू नहीं करते हैं, क्योंकि लाइट में तेव काय यानी कि अग्नि काय की जीव की हिंसा होती है। इसी तरह हम पंखा देखते हैं, एसी करते हैं, तो उसमें वाव काय और तेव काय
दोनों जीव की हिंसा होती है। और हमने क्या प्रतिज्ञा ली है कि हम तो हमारे तरफ से सब छह काय के जीवों को क्या है, अभयदान है। तो इसीलिए किसी को क्वेश्चन होता है कि क्यों लाइट पंखा नहीं रखने का, इतना गर्मी हो रहा है, तो दिस इज द रीजन। तो जो साधक है वो स्वयं तो जो भी सावध्य जो प्रवृत्ति यानी हिंसादी जो भी पाप प्रवृत्ति है, वो आरंभ समारंभ जो भी है उसका सबका त्याग करता है। और मन वचन और काया तीनों से करण करावरण सब प्रवृत्ति का त्याग करता है। इसलिए हम छह काय पूर्वक ये क्या लेते हैं, जब ये प्रतिज्ञा लेती है तो छह हम बोलते हैं ना, सामे सावजुल्यों पचकामी जाव्यम पजवासामी तुविहम तिविहेणम मणेणम वायाए कायणम न करेमी न कारवेमी। मीन्स मन से वचन से काया से न करेमी यानी मैं भी नहीं करूंगा और दूसरे के पास कराऊंगा भी नहीं। इसी तरह से हम क्या करते हैं, वो प्रतिज्ञा लेते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं चलता हम इधर बैठे हैं और उसको बोले कि लाइट चालू करो लाइट बंद करो तो वो भी नहीं चलेगा, दूसरे के पास से भी नहीं करवाना है। तो क्यों नहीं, तो एक एग्जांपल तो आपको ख्याल आ जाएगा। मर्डर का सुपारी हम बोलते हैं कि जो सुपारी देता है तो वो मर्डर तो कोई एक करके आएगा, तो जो सुपारी देगा उसको पाप नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं, उसको भी इतना ही पाप लगेगा जितना वो मर्डर करेगा, शायद ज्यादा भी होएगा तो इसे जीत के भाव, पर उसको भी लगे। मीन्स आप दूसरे के पास करवाओगे तो भी आपको इतना ही पाप लगेगा। तो हम इधर क्या बोलते हैं, न करेमी न कारमी। तो ऐसे हम सब सावध्य योग का इधर जो पाप क्रिया है उसका, ये जो समय में हमने वो प्रतिज्ञा ली है 2 घड़ी का, उसमें हम सब पाप प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। और ये हम जब भी करेमी भंत्रे जब भी सूत्र बोलते हैं तभी से हम सावध्य योग, सब सावध्य योग के पाप क्रिया का त्याग करने से तब भी हमारा संवर धर्म शुरू होता है। क्योंकि संवर धर्म यानी नवे आते पाप कर्मों को अटकाना। और अभी अब जब भी आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं कोई पाप क्रिया नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिक आपका संवर धर्म शुरू हो जाता है। और सामायिक का तो कितना महत्व है, हम पुनिया श्रावक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आपको पता होगा पुनिया श्रावक जो सैनिक राजा के समय में था, उसका कितना मूल्य था एक सामायिक का। कि वो सैनिक ने बोला कि महावीर स्वामी ने बोला कि आपको नरक, वो नरक कामी उन्होंने बांध लिया था ऑलरेडी, उनका पहले से ही, उनका महावीर स्वामी मिलने से पहले ही उनका आयुष्य बंध हो गया था। और जब भी उसको पता चलता है कि मेरा तो इसके बाद में नरक जाना है, किसको दुख नहीं होएगा, बहुत गिड़गिड़ाता है वो महावीर स्वामी के पास में, कैसे भी करके मैं आपका इतना भक्त हूं तो ये मेरी नरक नष्ट हो, ऐसा करो। अभी वो समझ नहीं रहा था तो महावीर स्वामी ने उसको क्या बोला कि पुनिया श्रावक का एक सामायिक खरीद के लाओ। कितना वो सामायिक में वो होएगा, क्या बोलते हैं उसका, इतना प्राइसलेस होएगा कि एक सामायिक खाली खरीद लाओ तो तुम्हारा क्या होएगा, नरक तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। जाता है सैनिक राजा, पुनिया श्रावक को बोलता है जितना धन लेना है वो लो, लेकिन आपका एक सामायिक का फल मुझे दे दो। तो ऐसा पुण्य श्रावक की सामायिक भी ऐसी थी, हमारे जैसी नहीं। तो ये कितना, वो ऑफ कोर्स यू कांट गिव टू एनीवन उसका फल, तो वो नहीं दे सकता, वो बात अलग है। इधर तो खाली को इतना ही देखना है कि कितना सामायिक में एक क्या बोलते हैं पावर है। और ये ऐसी सामायिक पुण्य श्रावक रोज करता है। तो ये एक कथा हमारे शास्त्रों में आती है। अभी ये तो हमने सामायिक ले लिया, 48 मिनट तक आप सामायिक का आगे सामायिक लेके आप प्रतिक्रमण कर सकते हो, क्योंकि ये तो फर्स्ट आवश्यक है। और जो नहीं करना है तो आप बैठ के स्वाध्याय भी कर सकते हो। उसके बाद में हम सामायिक क्या करते हैं, पालते हैं। तो उसमें जो सूत्र बोलते हैं
तो उसमें क्या होता है, वो सामाई वैजुत्तो जहाँ मणे होई नियम संजुत्तो छिन्नई असुम कम्मम सामाय जत्तियावारा वगैरह ये सूत्र है। पूरा तो नहीं बोल रही हूँ, एक दो सूत्र का मीनिंग हम समझते हैं कि छिन्नई असुभम कम्मम। तो इसमें क्या होता है, एक सामायिक करने से लाभ क्या होता है ये इसमें दिखा गया है। और दूसरा बोला है कि समणो इव साववो जम्हा। तो दो लाभ यहाँ बताए गए हैं। एक तो सबसे महत्व का लाभ है निर्जरा का, जो हम पहले ही स्टार्टिंग में देखा कि ये 6 आवश्यक की क्रिया संवर और निर्जरा धर्म को ये धर्म वाली ये क्रिया है। तो आपने सामायिक लिया तो संवर में तो आ गए, साथ साथ में ये निर्जरा भी करता है। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं कि छिन्नई असुहम कम। असुह यानी ये पूरा सब प्राकृत में सूत्र है, पहले के जो भी सूत्र है हमारे प्राकृत में है। तो अशुभ मीन्स अशुभ, कम्मम कर्म क्या करता है, छिन्नई यानी नाश करता है। तो सामायिक क्या करता है, जो हमारे अशुभ कर्म है उसको नाश करता है। और दूसरा क्या बोला है, समणो इव सावो जम्हा, कि क्या होता है जब भी तक सामायिक करने वाला साधक जब भी तक ये सामायिक में व्रत में रहता है तभी तक क्या है वो साधु तुल्य उसका वो बोला जाता है। क्यों साधु तुल्य, क्योंकि आप 6 काय के जीव को अभयदान देते हो वो टाइम में। साधु तो क्या उसका पूरा जीवन में ही अभयदान देता है। वो उस एक हमारे देखो जब हम व्रत भी ग्रहण करते हैं ना 12 व्रत में, तो हम एकेंद्रिय के हिंसा का व्रत नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमको गृहस्थ धर्म में रह के एक बिना एकेंद्रिय की हिंसा हम रह ही नहीं सकते। हम गैस पेटाएंगे, चूल्हा पेटाएंगे तभी तो रसोई बनाएंगे। जेंट्स वो खेती करेगा, पृथ्वी काय का आपको सब जो एकेंद्रिय की जीव की हिंसा बिना हम हमारा काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जो साधु करते हैं, क्योंकि वो तो पूरे जीवन तक उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन हम जब सामायिक में बैठते हैं तो वो एक घंटा तो 2 घड़ी तक 48 मिनट तक हम वही प्रतिज्ञा लेते हैं। इसीलिए इधर क्या बोला गया है कि ये सामायिक में क्या लाभ है कि उतने टाइम तक ये साधु तुल्य उसको माना गया है। तो ऐसा हम देखा कि ये पहले ही आवश्यक कैसा संवर और निर्जरात्मक दोनों है, बराबर। अभी दूसरा आवश्यक, पहला हुआ सामायिक, दूसरा आवश्यक है 24 सत्थो। 24 सत्थो यानी चतुर्विंशति स्तवन, जिसको हम लोगस करके हम वो पहचाना जाता है। क्यों लोगस यानी क्या है कि उसमें ये 24 भगवान, चतुर्विंशति मीन्स 24, 4 और 20 ये भी प्राकृत वर्ड है। तो 24 भगवाने का इसमें स्तवन है, स्तुति है। और जनरली ये सब सूत्र जो उसका प्रथम वर्ड होता है उसके नाम से जाना जाता है। जैसा कि नमोत्थुणम हम बोलते हैं तो उसका नाम नमोत्थुणम नहीं है, वो शक्र स्तवन है। शक्र यानी इंद्र ने परमात्मा की जो स्तुति की है वो शक्र स्तवन है, लेकिन उसका पहला वर्ड है नमोत्थुणम, तो हम उसको नमोत्थुणम बोलते हैं। द सेम वे ये एक्चुअली चतुर्विंशति स्तव 24 भगवान की इसमें स्तुति है, लेकिन पहला वर्ड लोगस है तो हम उसको लोगस के नाम से पहचानते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है, जो साधक है वो पूरे पाप व्यापार से वो निवृत्त हुआ है और अभी ये दूसरे आवश्यक में प्रवेश करता है, तो पूरे उल्लास भाव से वो क्या होता है, अभी तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करता है, बराबर है। तो हम पता है ये लोगस तो सबको पता होगा, जनरली हम कौसक हमको करना होता है तो तभी हम ये लोगस 1 लोगस 4 लोगस 5 लोगस जैसी भी हमारे क्रियाओं हिसाब से हम कौसक करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो गणधर भगवान थे महावीर स्वामी भगवान के, उनके गणधर भगवंतों ने ये सूत्र की रचना की है। और इसमें ये भरत क्षेत्र में ये अवसर पीढ़ी काल में जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, अभी वर्तमान 24 तीर्थंकर, क्योंकि हमको तो जो अभी आने वाले हैं उसके भी नाम पता है और
पूर्व इसके पहले जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए थे उसके भी नाम पता है, अतीत 24 और वो अनागत 24। लेकिन इसमें लोगस सूत्र में वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना की है। अभी ये 24 तीर्थंकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भिन्न है। द्रव्य हर एक अलग अलग द्रव्य है, क्षेत्र भी अलग अलग क्षेत्र में जन्म लेते हैं, काल अलग अलग काल में जन्म लेते हैं। एक ही काल में दो तीर्थंकर जो वो उधर महावीर क्षेत्र में एक समय 20 रहते हैं, लेकिन इसमें जो भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर भगवान है उनकी स्तुति की है, तो वो तो हमको पता है एक समय में एक ही तीर्थंकर रहते हैं। ऋषभदेव है और वही समाज में अजितनाथ भगवान नहीं होंगे, उनके बीच तो बहुत बड़ा फासला था। लेकिन लास्ट जो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है उनके बीच में केवल 250 वर्ष का क्या था बीच में डिफरेंस था, फिर भी एक समय में वो नहीं होंगे। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल से भी मीन्स हर एक द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से ये हर एक तीर्थंकर अलग है, लेकिन गुण से सब समान है। सबका 4 घाती कर्म क्षय हुए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुए हैं। सब तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से 34 अतिशय होते हैं, बराबर है। और उनकी वाणी होती है वो 35 गुणों से युक्त होती है। तो ये जहां जहां तीर्थंकर परमात्मा विहार करते हैं वो एरिया में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तीड़, उंदर, शुक्र, स्वचक्र भय और परचक्र भय, ऐसे जो ये 7 उपद्रव है ये कुछ नहीं होते। इतना तीर्थंकर भगवान का प्रभाव होता है। और दूसरे भी कितने सारे भय बताए गए हैं, सलील भय, अनल भय मीन्स ये पानी का भय वगैरह, विष भय, विषधर भय, दुष्टग्रह भय, राज भय, रोग भय, रण भय, काफी रूप वगैरह थी। कुछ भी जिधर तीर्थंकर परमात्मा विचरते हैं उधर कुछ भी नहीं होता है। फिर तीर्थंकर परमात्मा के 8 प्रातिहार्य भी बताए गए हैं, अशोक वृक्ष, सुरुष्टि, दिव्य ध्वनि, 2 बाजू चामर, फिर आसन, फिर छत्र, भामंडल, देवदुंदुभी वगैरह 8 प्रातिहार्य बताए गए। तो वो भी हर एक तीर्थंकर को सेम ही रहता है। अभी ये तो उनकी बाह्य विभूति है सब जो हमको दिखाई देती है, लेकिन उनका अंतरंग विभूति क्या है? तो जैसे कि पहले देखा हमने कि उन्होंने 4 घाती का क्षय करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट किया है। और ये कैसे है? धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। जो बोलते हैं लोगस उज्जोगरे धम्म तीर्थयरे, धर्म तीर्थ की वो स्थापना करने वाले हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, एक एक विशेष है। अभी आप लोगस बोलोगे ना तो शांति से बोलना और उसका एक एक विशेषण देखना। तो कैसे है वो धर्म, ये नमोत्थुरम में भी ये सब आते हैं। क्या होते, धर्म की शुरुआत करने वाले हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। तो ऐसे स्वयं बुद्ध है, ये नमोत्थुरम में सब वर्ड आएंगे। संयस बुद्धम, धम्म तीर्थयर झिणम, ये सब आते हैं वर्ड्स। अभय देनारे, शरण देनारे, बोधि देनारे, अढ़ादूषण से रहित, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है। तो ये तीर्थंकर परमात्मा का ये स्तवन ये लोगस सूत्र में किया गया है। तो अभी ये लोगस सूत्र में क्या है? 7 गाथाओं का ये सूत्र है। उसके 3 विभाग हम कर सकते हैं। पहली गाथा है लोगस उज्जोगरे धम्म तीर्थयरे जिणे अर्यन्ते तिक्तैसम 24 केवल। तो ये पहली गाथा क्या है? मंगलाचरण रूप है, जैसे हर एक में होता है। इसमें प्रथम साधक प्रतिज्ञा करता है कि मैं तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना करूंगा, इसका निर्देश दिया गया। तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनको क्या होते हैं?
उनके चार अतिशय रहते हैं तीर्थंकर परमात्मा के। कौन से चार अतिशय? ज्ञानातिशय, वचनातिशय, अपायापगामातिशय और पूजातिशय। ऐसे चार अतिशय तीर्थंकर परमात्मा को होते हैं। तो ज्ञानातिशय यानी उनको अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। वचनातिशय यानी उनकी जो वाणी है वो 35 गुणों से युक्त है। एग्जाम्पल दो, एक अतिशय। अतिशय तो आप समझते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज, उसको हम अतिशय बोलते हैं। तो इनके वाणी में 35 अतिशय है और उनके खुद के 34 अतिशय है। तो वाणी के अतिशय का एक एग्जाम्पल दूं तो आपको पता है कि हमको सबको पता है, जब भी तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में बैठ के जब भी देशना देते हैं तो क्या उनकी, और समोसरण में खाली नारद के जीव नहीं होते हैं, बाकी तीनों गति के जीव, तिर्यंच, मनुष्य और देव, सबके जीव होते हैं। तो जब भी तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं तो ये वचनातिशय के कारण इतना इनका अतिशय वाणी है का कि सब जीवों को उनके उनके भाषा में समझ आता है। हम बोलेंगे ऐसा कैसा होता है? तो अभी तो हमको साइंटिफिकली भी हम देखते हैं, यूनो में वगैरह, यूनो की मीटिंग वगैरह होती है तो हर एक जो बोलते हैं वो हर एक कितने सारे लैंग्वेज में इमीडिएटली ट्रांसलेशन होता है। तो ये ऐसा परमात्मा की वाणी 35 गुणों से युक्त है। वचनातिशय, फिर पूजातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय, पूजातिशय। पूजातिशय मीन्स तीर्थंकर परमात्मा तीनों जगत के लिए क्या है? पूजनीय है, सर्वोत्तम है। और अपायापगमातिशय, इससे क्या होता है कि जो उनके पूर्व कर्म से जो रोग हुए हैं अथवा तो जो भी है रागादि वगैरह भाव है, जो भी दुख है वो सब दुख उनके क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। तो ऐसे ये तीर्थंकर परमात्मा के चार अतिशय भी बताए गए हैं। फिर भक्त इसमें कहता है, जो पहली गाथा में, हमको तो गाथा देखना है कैसे है। लोगस उद्योगरे दम्मतिथय जिणे अरिहंते कित्तैसम चौबीसमपि केवली। तो ये कैसे है? भक्त कहते कि चार घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन जिन्होंने प्रकट किया हुआ है, ऐसे लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, लोगस उज्जोगरे मीन्स लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, धम्म तीर्थयरे झिणी यानी धर्म तीर्थ की स्थापना करना, देव दान और मनुष्य बड़े पूजा एले, ऐसे अरिहंत परमात्मा का मैं क्या करती हूँ? तिथयरा में लोगस उज्जोगरे धम्म तिथयरे झिणी अरिहंते कित्तैसम। कित्तैसम मीन्स मैं उनकी कीर्तन करूंगा, उनको वंदना करूंगा, उनको उनकी स्तवना करूंगा। ये हुई पहली गाथा। हमने 3 विभाग पाड़े हैं। तो पहले गाथा में मंगलाचरण, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ गाथा में 24 तीर्थंकर के नाम का कथन है। 24 तीर्थंकर का मीन्स एक एक गाथा में 8 भगवान का नाम। तो आप देखोगे, मैं एक पहली गाथा बोलती हूँ, आप गिनना। सब मजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमयंच पौमप्पहम सुपासम जिणंच चंदप्पहम वंदे। बराबर 8 हुए। और हर एक गाथा में सेकंड, थर्ड और फोर्थ गाथा में 8 तीर्थंकर परमात्मा को क्या किया है? वंदन किया है। फिर आई 4 गाथा हो गई। फिर 5th, 6th और 7th गाथा, इनको क्या बोला है? प्रणिधान गाथा त्रिक बोला गया है। क्यों? इसमें ये गाथा में क्या है? वंदन, पूजन और साथ में परमात्मा को याचना भी की गई है। तो भक्त क्या बोलता है ये 3 गाथा में? वो बोलते हैं उनकी एकमात्र भक्त की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि उसका जो स्वयं का परमात्मा पद है, मीन्स सत्ता में हमको पता है जैसा परमात्मा का स्वरूप है
वही स्वरूप सत्ता में हमारा भी आया है। तो वो तीर्थंकर परमात्मा की जैसा प्रकट कराने की वो भक्त परमात्मा को प्रार्थना करता है। और इसीलिए ये कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए साधन तो चाहिए। तो ये परमात्मा स्वरूप प्रकट करने के लिए वो 3 साधनों की परमात्मा के पास याचना करता है। कौन है ये 3 साधन? आरुग्य, मोहिलाभ और समाहिवर उत्तमम। मीन्स आरोग्य मीन्स आरोग्य की याचना करता है, मोहिलाभ और उत्तम प्रकार की समाधि का साधक परमात्मा के पास याचना करता है। बोधिलाभ यानी हम बोलते हैं वही वस्तु स्वरूप की, वस्तु तत्व की यथार्थ समझ, वही है बोधिलाभ, जिससे हम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही लोगस है जो दूसरी आवश्यक क्रिया है, वो क्या है? 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना है। हम एक्चुअल में देखो तो वितराग परमात्मा हम बोलते ही है उसको वितराग परमात्मा, मीन्स वो राग और द्वेष से टोटल उन्होंने क्षय कर दिया है। बराबर है। ऐसे परमात्मा, इसी परमात्मा की हम स्तवना करते हैं। और ये ऐसे वितराग परमात्मा तो डायरेक्ट कुछ आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि तो वितराग है। लेकिन इधर बोला गया शास्त्र में कि ऐसे परमात्मा की स्तवना करने से कि हमारे भाव की विशुद्धि प्राप्ति होती है, हमारे भाव शुद्ध होते हैं। और इसीलिए लोगस का जो नाम स्मरण है ये सूत्र का, उसका भी अद्भुत महिमा बताया गया कि जैसे जैसे हम उसको शब्द बोले तो ऐसे ऐसे उसके भाव प्रकट होते जाते हैं। और ये परमात्मा के नाम स्मरण से जीवों को खुद की आत्मा में जो ये गुण रहे हैं वो मैं कैसे प्रकट करूं, इसकी उसको साधक को प्रेरणा मिलती है। और वो गुणों का खाली प्रेरणा ही नहीं मिलती है, वो गुणों का प्रगटीकरण भी होता है। तो ऐसे ये 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना है। हम अलग अलग तरीके से भगवान की स्तवना कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनकी स्तवना भक्ति वगैरह भी कर सकती है। मीन्स उनके दर्शन करना, पूजा करना, उनके नाम का स्मरण जाप आदि करना, ये सबसे क्या होता है, ये तीर्थंकर परमात्मा की स्तवना हम कर सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा आवश्यक 24 जिनेश्वर भगवान की स्तवना करना, ये दूसरी आवश्यक क्रिया है। अभी इसके बाद में है वंदना, तीसरा। तो वंदना अभी कैसा आएगा ये कि जब भी आप साधना के क्षेत्र में चल रहे हो, तो ये साधना के क्षेत्र में क्या होएगा? हाँ, गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी थोड़े टाइम पहला ही गुरु पूर्णिमा गई। खाली जैन धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी गुरु का महत्व अत्यंत है। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम हमारे गुरु के प्रति हम आदर बहुमान व्यक्त करते हैं। तो ये तीसरा पहला पहला सामायिक क्रिया संभव में आ गए। तो 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति स्तवना की। अभी बारी है देव के बाद कौन आएगा? गुरु आएंगे। तो अभी इसमें क्या करते हैं, हम गुरु को हम सुख साता हम पूछते हैं। तो ये जो पूरी वृद्धि है ये वंदना में आती है। तो क्या करना है इसको, जो भी हमारे उपकारी गुरु हैं उसको सबसे पहला उपासना वगैरह जाके उसको उनकी वंदना करो। और अच्छी तरह से इसमें क्या करना है, पाठना उच्चार पूर्वक उत्कृष्ट भाव से बार आवर्तन रूपी विधि का वंदन, जो वंदन विधि है ये क्या है, कंप्लीट करना है। अभी हम ये जो वंदना क्रिया है, तो जैसा हमने लोगस में 3 भाग करके ये देखा, ऐसा ही इधर वंदना में हम 4 भाग कर सकते हैं। कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है ना? किसको बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? बराबर हो रहा है ना?
तो इसमें प्रथम है इच्छा निवेदन, दूसरा है आज्ञा याचना, तीसरी है सुख शांता पृच्छा और चौथी है क्षमा याचना। तो पहला हम देखो, कोई भी सूत्र का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा? इच्छामि। ये बस हम वंदन भी करें तो भी इच्छामि खमासमि। तो इच्छामि मीन्स क्या कि जो भी अनुष्ठान की शुरुआत करना है, दर्शन करने जाओ, पूजा करने जाओ, प्रतिक्रमण करने जाओ, सामायिक करें, कोई भी अतिशय की आप क्या करो, इधर शुरुआत करो, तो ये जो हम साधक खुद के इच्छा से जो होए तो उत्साह पूर्वक कर सकता है। कोई जबरदस्ती फोर्स पूर्वक कराएगा तो वो उत्साह से नहीं होगी। इसीलिए ये जो प्रतिक्रमण सूत्र है, आलोचना सूत्र जो भी है, उसमें सबसे पहला वर्ड आएगा इच्छामि। तो यहाँ तो गुरु वंदना करना है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में देव के बाद गुरु का स्थान आता है, और गुरु का स्थान तो हम बोले बहुत ऊंचा है, क्योंकि हमको देव को दिखाने वाले भी कौन है? तो गुरु है। इसलिए गुरु का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिष्य खुद के इच्छा से गुरु के समक्ष वंदन करने के लिए उपस्थित होता है। तो वो पूरा पाठ है, इच्छामि खमासमणो वंदियों जावणी जाए निसिहियाय। इतना बोल के वो खुद की इच्छा प्रकट करता है कि मुझे आपको वंदन करना है। फिर क्या बोलेगा? निसियाय अणुजानहमेमि उग्गहम। इच्छामि खमासमणो वंदियों जावणी जाए निसिहियाय, इतने तक तो सबको पता है। फिर क्या बोलते हैं? अणुजानहमेमि उग्गहम। तो इधर इसको क्या है, वो बोलता है कि अभी मुझे आपके अवग्रह में प्रवेश करना है, क्योंकि तो वंदन करना है। तो ये अवग्रह क्या होता है? अवग्रह यानी कि गुरु जहाँ विराजमान है उसके आजू बाजू की चारे दिशा की 3.5 हाथ का जो क्षेत्र है उसको गुरु का अवग्रह, क्षेत्रावगाह बोला जाता है। ये क्षेत्र में गुरु उसके उनकी खुद के इच्छा अनुसार उठ उठ बैठते हैं, खड़े रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी करना है वो करते हैं। अभी शिष्य को जो वो अवग्रह में, वो जगह में प्रवेश करना है, तो वो प्रथम गुरु की आज्ञा लेगा। अभी शिष्य को गुरु को वंदन करना है, तो ये आज्ञा लिए बिना वो अवग्रह में प्रवेश करने का निषेध है। तो ये सूत्र पहला स्टार्टिंग में, ये अणुजानमेमि उग्गहम, ये अणुजानामि मीन्स आज्ञा प्रदान करो, और उग्ग अग्ग ये अवग्रह, मैंने बोला ना अवग्रह यानी अवग्रह, ये सब प्राकृत वर्ड्स है। तो वो क्या करता है? प्रथम तो अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा मांगता है। क्या हुआ? इच्छामि खमासमणो मीन्स खुद के इच्छा से वंदियों जावणी जाए निसिहियाय, अणुजानहमेमि उग्गहम मीन्स आपके अवग्रह में मुझे प्रवेश करना है। गुरु हाँ बोलते हैं तो वो निस्सिही शब्द बोल के, निस्सिही बोल के अवग्रह में प्रवेश करता है। फिर वो गोदोहिका अथवा तो उकड़ो अवस्थान बोलते हैं। गोदाहिका मीन्स जब भी हम गाय को दोहन करते हैं, जो गोवाड़िया होता है, वो कौन से आसन में बैठता है? अथवा तो उकड़ो, जैसे हम ऐसा दो पैर करके बैठते हैं, वो आसन में बैठ के अहो कायम कायम ये उच्चार करके 3 आवर्तन करते हैं। और फिर संभासम कहते गुरु के चरण को हम क्या करते हैं? मस्तक से स्पर्श करते हैं, क्योंकि अभी वो अवग्रह में आ गया है। और फिर हम जो शाम को जब भी करते हैं प्रतिक्रमण, तो तभी देवस्यम शब्द वो पढ़ते हैं। जब भी सुबह में सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तभी रायम शब्द वापरते हैं। तो देवस्यम यानी जो दिवस संबंधी उनका जो संयम वगैरह है, उनकी तबीयत वगैरह, उनका जो इंद्रिय, उनकी हम क्या साता पूछते हैं, क्षेम कुशल पूछते हैं। तो वो कौन से पाठ से पूछते हैं? पहला तो हम अहो कायम काय करके 3 आवर्तन करते हैं, फिर हम क्या वापस करते हैं
जत्ताभे जव्वणी जंजम्भे। तो जत्ताभे यानी गुरु की संयम यात्रा, उसकी हम क्षेम कुशलता पूछते हैं। और जव्वणी चंचम्भे, इससे इंद्रिय और मन संबंधी सुखसाता हम पूछते हैं। और फिर जो दिवस संबंधी जो हमारे अपराध हुए हैं, उनके मन वचन और काया से जो भी हमारे आशातना हुई है, तो उसका हम क्षमा याचना करते हैं। तो पूरा पाठ हम बोलते हैं। ये जत्ताभे जवणी जंचम्बी के बाद जो बोलते हैं आवसिया है, फिर निसिया, जो पूरा पाठ है वो पाठ में क्या करते हैं, अप्पाणम ओसिरामी तक हमारे से जो भी मन से वचन से काया से जो भी हमारे से उसकी आसाधना हुई है, तो निंदामी गरियामी अप्पाणम ओसिरामी करके हम क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसे एक वंदन में 6 आवर्तन होते हैं। और हमको पता है गुरु वंदना 2 टाइम करते हैं, तो 2 टाइम में 12 आवर्त पूर्वक होते। आवर्त, इसको हम आवर्त बोलते हैं। पहले 3 एक वंदना में अहो कायम काया तक 3 आवर्त, फिर जत्ताभे जव्वणी जंचम्बी में दूसरे 3 आवर्तक, मीन्स एक वंदना में 6 आवर्तक, 2 वंदना में 12 आवर्तन पूर्वक हम गुरु वंदना करते हैं। और वंदना का कितना इम्पोर्टेंस है, जैसे हमने सामायिक में पुण्य श्रावक का एग्जाम्पल देखा, ऐसा ही वंदना में हमको पता है कि श्री कृष्ण कि जिनके वो जो उन्होंने भी पहले ही तीर्थंकर नाम कर्म बांधने से पहले ही उनका नरक का आयुष्य बन गया था। वो पूरी स्टोरी है कैसा शिकार वगैरह करते हैं। तो उनको वो जब भी नेमनाथ भगवान को वंदन करते हैं, कितने सारे साधु है के, तो मेरे ख्याल से उनको पता नहीं होता है, वो इतने भाव से वंदन करते, कितने हजार साधु हो, तो 3 या 4 उनकी नरक का उनका क्या होता है, क्षय होता है। तो 7वीं वैसे वो डायरेक्ट 3G नरक में से आ जाते हैं, ऐसा शास्त्र में आता है। तो ऐसा ये गुरु वंदना का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है। तो कितने हमने आवश्यक कंप्लीट किए अभी तक? पहला सामायिक आवश्यक, दूसरा 24 संतो आवश्यक, और तीसरा 24 संतो के बाद तीसरा हुआ गुरु वंदना, वंदना आवश्यक। अभी चौथा आवश्यक है, वो है प्रतिक्रमण, जो हम प्रतिक्रमण बोलते हैं ना। प्रतिक्रमण यानी क्या? पाप से पीछे हटना। तो ये चौथा आवश्यक आता है। तो अभी 3 आवश्यक से आराधना से अभी साधक की चित्तवृत्ति भी शांत हो गई, निर्मल हो गई है। तो अभी वो अभी आत्मनिरीक्षण करेगा। कि आत्मनिरीक्षण कैसे क्या करेगा, कि मेरे जो भी कोई सूक्ष्म अथवा स्थूल मेरे दोष हुए हैं दिवस दरमियान अथवा तो रात्रि दरमियान, तो वो उसका पहला तो आत्मनिरीक्षण करके फिर उसकी आलोचना, निंदा और गर्हा पूर्वक उसका क्या करता है, प्रतिक्रमण करता है। क्या करता है? स्थूल और सूक्ष्म दोषों को आत्मनिरीक्षण करेगा। कौन से दोष हुए हैं मेरे दिवस दरमियान, शाम को करेगा, सुबह में करेगा तो रात्रि का, तो वो निरीक्षण करके फिर उसकी आलोचना, निंदा और गर्हा पूर्वक उसका प्रतिक्रमण करता है। प्रतिक्रमण यानी क्या? कि पाप से पीछे हटने की क्रिया। मन वचन और काया से स्वयं पाप किया हो अथवा तो अन्य के पास करवाया हो, जैसा आपने सामायिक में देखा, अथवा तो अनुमोदना भी की हो। जैसे कि बहुत बार अनुमोदना, हमको कुछ कोई एक एग्जाम्पल दूं कि कई बार हम कोई पाप करता होता है, पाप मीन्स पाप की क्रिया होती है, और हम उसकी अनुमोदना जाने अनजाने में कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल तो मुझे अभी याद नहीं आता है। कई बार कई पाप क्रिया तो हमारी कितनी सारी होती रहती है, और हम अनजाने में भी उसकी अनुमोदना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग की क्रिया देखो, तो स्विमिंग की क्रिया तो आपका है कि जीव हिंसा ही है, और उसमें हम रेस देखने गई, कोई भी स्विमिंग की है कि घोड़े की रेस देखने के जाओ, बराबर है, किसी की भी रेस देखने को आप जाओ, और
जो सपोज आपका कोई जॉकी मीन्स आपका कोई घोड़ा है जिसके आपका कोई उसमें पे लगाया है, अथवा तो स्विमिंग की रेस है, आपका कोई पोता पोती वगैरह है और वो रेस कर रहे हैं और उसमें वो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत तालियां बजा के उसको क्या करेंगे, उसको आपका हर्ष व्यक्त करेंगे। तो यानी वो जो स्विमिंग की क्रिया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके कोई भी पोता पोती की जो भी आपके हैं, आपके बच्चे वगैरह है, तो वो कोई मीन्स किसी में वो प्राइज में उसको अच्छा वो कर रहे हैं तो उसमें मना, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अभी मुझे दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन ये फाइनली ये जो क्रिया है, स्विमिंग की जो क्रिया है, उसमें आपका एक जीव की तो हिंसा हो रही है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी अनुमोदना कर रहे हो। तो अनुमोदना जब भी दूसरी भी कोई आप शांति से सोचेंगे तो कितनी सारी क्रिया होती है, सब में हम तो पाप बंधन ही करते हैं। तो वो दूसरे जो क्रिया करते हैं तो उनको तो पाप बनना ही है, लेकिन उनकी अनुमोदना करके आप भी वही पाप में आप शामिल होते हैं। तो ये यहाँ बताया है कि ये जो जो मन वचन और काया से, मीन्स मन से भी हम, कई बार ऐसा होता है कि हम, चलो काया से तो चलो हिंसा की, काया से तो सबको पता है, वचन से आप, वचन से तो आप किसी का इंसल्ट वगैरह करके जितना आप काया से उसको नहीं दुख करेंगे, इसका इतना वचन से आप सामने वाले को दुखी कर सकते हो, मीन्स उसकी हिंसा कर सकते हो। तो आप बोले मन से तो कोई नहीं होएगा ना, तो हम मन से भी बोला है कि मन से तो सबसे ज्यादा पाप होता है, इसका मन से आप बुरा भी सोचो। अभी सबका एग्जाम्पल दूंगी तो टाइम हो जाएगा, लेकिन तांदुल मत्स्य का वगैरह एग्जाम्पल आता है कि वो तांदुल मत्स्य कितना छोटा मत्स्य होता है स्वयं रमण में, और वो खाली मन से भाव करके करके वो नरक आयुष्य बनता है, शास्त्र में आता है। तो बेसिकली जो भी आप मन वचन काया से जो भी पाप करते हो, कराते हो, अथवा उसकी अनुमोदना करते हो, तो उसका जो की है आपने दिन में या रात, क्या करते हैं उनका आप याद करके कि मुझे ये मेरे पाप है हुए हैं, तो उसका मैं क्या क्षमा मांगती हूँ। तो ऐसा ये प्रतिक्रमण का मेन हेतु क्या है, पाप से निवृत्त होना। तो जो साधु है, मैंने बोला ये जो पूरी क्रिया है वो साधु साध्वी श्रावक श्राविकों का सबको कंपलसरी है। तो साधु साध्वी जो उनके 5 महाव्रत है, उसमें जो भी दोष हुआ है, अथवा तो साथ में उनकी 5 समिति का पालन है, 3 गुप्ती का पालन है, तो उसमें जो भी उनके उनसे उनका जो भी उसमें दोष हुआ है, तो उसका वो निरीक्षण करके उसकी क्षमा याचना करते हैं। और हमारे गृहस्थ के लिए जो 12 व्रत है, तो 12 व्रत पता है सबको, 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत और 3 शिक्षा व्रत और 4 गुण व्रत। तो इसमें जो भी पाप हुआ है उसका वो बराबर ध्यान देके याद करके वो क्या करते हैं, किसी में भी जहां भी दोष हुआ हो तो उसका मिच्छामि दुक्कडम होता है। तो इससे क्या होता है, इससे मीन्स हमके दोनों टाइम ऐसा हमको करना है। तो इससे हम देखो, तो भूतकाल में जो हमारे पाप हुए हैं उनकी हम आलोचना करते हैं, और वर्तमान में क्या होता है वो पाप नहीं होंगे, इसलिए हम उधर संवर भी करते हैं। और आगे आएगा प्रत्याख्यान मीन्स पचखान। तो अभी भविष्य में हम पाप नहीं करेंगे, उसका हम प्रत्याख्यान नहीं दे, वो लास्ट आवश्यक आएगा। तो ऐसे ही आवश्यक क्रिया, इतनी 6 आवश्यक क्रिया अच्छे से बताई है। तो अभी ये 12 व्रत में आपको, चलो 2 मिनट में हम देख लेते हैं कि कैसे 12 व्रत जाते हैं। अच्छा, वो बाद में देखते हैं, पहले तो प्रतिक्रमण के 2 प्रकार हम समझते हैं, एक है द्रव्य प्रतिक्रमण और दूसरा है भाव प्रतिक्रमण। अब ये ध्यान से समझना, यही देखना है। द्रव्य प्रतिक्रमण यानी कि जो हम प्रतिक्रमण की क्रिया तो करते हैं लेकिन उपयोग रहित यंत्रवत पूरी करना, इस कोई बोल रहा है आप खाली बस सुनते जा रहे हो, आपका मन कहाँ ही भटकते हैं, और हमने बोला हमने प्रतिक्रमण कर लिया। अथवा तो चलो आपको प्रतिक्रमण आता भी है लेकिन आप बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, लेकिन क्या बोल रहे हो वो आपको खुद को भी उसका
मीनिंग पता भी नहीं है और उसका उपयोग भी उसमें नहीं है। तो ये जो यंत्रवत जो क्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये जब भी करता है तो उसमें पाप सेवन का उसको खेद नहीं होता। बेसिकली ये प्रतिक्रमण से हमको क्या करना है, आपका भाव क्या होना चाहिए कि जो पाप क्रिया मेरे से हुई है उसका मुझे पश्चाताप है, बराबर है, इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन आप ऐसे ही जब भी बोल के जाते हो तो उसमें आपका पाप से आप पीछे नहीं हट सकते हो, और इससे इसका फल यथा होता है कि वही दोष वो व्यक्ति उसका पुनः पुनः इस पुनरावर्तन वो दोष का होता है। तो ऐसे द्रव्य प्रतिक्रमण से आत्मशुद्धि नहीं होती। तो आत्मशुद्धि कैसे होएगी? भाव प्रतिक्रमण से, कि जब भी प्रतिक्रमण की क्रिया जागृति पूर्वक उपयोग पूर्वक होएगी तो वो भाव प्रतिक्रमण है, कि जो सूत्र बोलते हैं वो सूत्र में हमारा उपयोग, हमारा मन उसमें एकाग्र करना है, और फिर देखना है कि क्या हमारे हो रहे हैं, क्या हमारे दोष हो रहे, वो दोष के पूर्वक उसका खेद करना है, उसका पछतावा करके ये प्रतिक्रमण की क्रिया करना है। तो इससे क्या होता है कि दूसरी बार वो भूल होने से वो बच जाता है। और ये हमको पता है कि 5 टाइप के प्रतिक्रमण हम देखते हैं कि देवसी प्रतिक्रमण यानी दिवस दरमियान जो पाप हुए हैं उनका हम करते हैं, राई प्रतिक्रमण रात दरमियान होते हैं, पाक्षिक 15 दिन में, चौमासिक 4 महीने में, और अंतिम संवत्सरी की जो कोई कभी प्रतिक्रमण करता ही नहीं है 12 महीने में, तो एटलीस्ट लास्ट जो संवत्सरिक प्रतिक्रमण है वो वार्षिक प्रतिक्रमण हम करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण हम ये पूरे हमने देखे हैं। तो अभी खाली जो बार व्रत है, इसे तो पता है सबको, पर फिर भी हम एक वेरी शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि कैसे हमको पाप ये देखना है। तो सबसे प्रथम तो सम्यक का व्रत है, और सच्चे देव गुरु धर्म पे ही हमको, मिथ्या देव गुरु धर्म पे हमको नहीं करना है। तो ये क्या है, ये प्रथम। और फिर बार व्रत कौन से? सबसे पहला अहिंसा, हिंसा विरमण व्रत। तो हिंसा विरमण मीन्स हिंसा से बचना है, बराबर, सबसे प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट व्रत है। और बाकी के 4 व्रत इसके ही क्या करते हैं, इसके रक्षा के लिए। तो वो जो भी हिंसा हम देखते हैं, स्थूल हिंसा, सूक्ष्म हिंसा, इसे जो भी हमारी हिंसा हुई हो तो हम याद करके उसको क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। फिर दूसरा मृषावाद विरमण व्रत, यानी जो कुछ मृषावाद, मृषा यानी जो असत्य बोला हो। तीसरा है चोरी, अनर्थ दंड, सॉरी अदत्ता दान विरमण व्रत, यानी कोई चोरी वस्तु हुई है। फिर चौथा है वो मैथुन विरमण व्रत। और 5 मैथुन मीन्स इसमें 5 खाली मैथुन यानी खाली स्पर्शेंद्रिय नहीं, लेकिन 5 इंद्रियों का भोग की जो विषय है उसका त्याग करना है। और पांचवा है वो परिग्रह परिमाण। तो इसमें भी 9 प्रकार के परिग्रह होते हैं, कि जो हमने व्रत ग्रहण किए हैं, हमारे से कोई भूल चूक हुई है वो व्रत में से, तो वो हम क्या करते हैं, उसको मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। है ना, खित्त घर हट्ट वाड़ी सब है, क्षेत्र, फिर हमारे धन धान्य, हमारे नौकर चौकर, हमारा दागिना, सब में हम आपको क्या परिग्रह या की मर्यादा बांधनी है, उसका हमने व्रत ग्रहण किया है। लेकिन वो व्रत में जो हमारा कुछ भी भूल चुक हुआ है, अतिचार हुआ है, तो हम इसको मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं। तो ऐसे ये प्रथम 5 व्रत के अतिचार होते हैं। उसके बाद ये अनुव्रत है 5, वो 5 साधु के महाव्रत होते हैं, वो तो हम नहीं देख रहे, हम खाली हमारे लिए देखते हैं। और फिर ये 5 अनुव्रत के क्या बोलते हैं, विकास और संरक्षण के लिए आगे के 3 गुणव्रत कहे गए हैं। तो इसमें दिग्व्रत आएगा, फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत आएगा, और फिर अनर्थ दंड व्रत आएगा। दिग्व्रत यानी दिशा संबंधी, कि हम वो भी रोज नियम करते हैं कि हम ये दिशा में इतना किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, उत्तर दिशा में, इसमें 4 दिशा में हम एक नक्की करते हैं कि ये दिशा में आज हमको उधर नहीं जाना है, तो इतना मीटर, इतना किलोमीटर से ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें बाय मिस्टेक जो आपका कुछ
वो व्रत भंग हुआ हो तो वो क्या हम ये छठे दिग्व्रत में उसके मिच्छामीदुक्कड़म करते हैं। फिर सातवां उपभोग परिभोग व्रत, यानी उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, यानी क्या, जो वस्तुओं हम एक एक ही टाइम जो भोगते हैं, जैसे कि अनाज है, फूल है, वो जिस हम एक टाइम खाएंगे तो दूसरे टाइम हमको उसका यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं उपभोग। और परिभोग यानी जो वस्तु हम बारंबार यूज कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े हैं, दागिने हैं, तो आज पहना वापिस 4 दिन के बाद हम वापिस पहन सकते हैं, तो उसका भी हम परिमाण, उसकी मर्यादा हम बांध सकते हैं। और उसमें जो कुछ हमारा मिस्टेक हुआ हो तो वो जो भी हमने किया है कि चलो आज मैं 4 गाड़ी से ऊपर 5वें गाड़ी में नहीं बैठूंगी, कि इतने मेरे पास, चलो ये चातुर्मास में मैं मेरे इतने जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास, तो उससे ज्यादा मैं नहीं खरीदूंगी कि नहीं पहनूंगी। तो ये जो हम व्रत ग्रहण करते हैं उसमें जो हमारा कोई अतिचार हुआ है तो ये 7वें व्रत में आ जाएगा। फिर है 8वां अनर्थ दंड वीरवा व्रत। अभी ये हम क्या देख रहे हैं, गुणव्रत देख रहे हैं, इसको गुणव्रत बोलते हैं। दिग्व्रत, फिर 7वां उपभोग परिभोग व्रत और 8वां अनर्थ दंड वीरवा व्रत। ये अनर्थ दंड तो बहुत हम हमारे से बाय मिस्टेक हो ही जाता है। मीन्स अनर्थ दंड, उसका नाम ही ऐसा है। अर्थ मीन्स कुछ भी हमका हमका कोई जरूर है, अनर्थ मीन्स कोई हेतु बिना, बिना हेतु जो हम पाप क्रिया करते हैं उसको अनर्थ दंड बोलते हैं। कि जो पाप क्रिया, पाप का सेवन इसका कोई जरूर भी नहीं है और हमारे से वो हम करते हैं, तो वो जस्ट फॉर कुतूहल के लिए, जिज्ञासा के लिए, इसीलिए जो अविवेक के कारण हम करते हैं, अशुभ विचार करते हैं, चार कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा। स्त्री कथा मीन्स हमारी गॉसिप, सबसे इम्पोर्टेंट लेडीज के लिए, जो सबसे प्री गॉसिप में क्या करते हैं, पाप का ही तो, उसका फलाना का ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, उसने यहाँ सेल लगा है, क्या करते, पूरा गॉसिप। तो उसमें क्या है, विदाउट रीजन आप ये गॉसिप में क्या करता है, कर्म बंधन करते हैं। फिर आप अभी ये है रेनी सीजन है, फॉल्स में वगैरह नहाने गए, स्विमिंग पूल में नहाने गए, तो ये क्या है, ये आपको जरूरी नहीं है पाप का सेवन करना। सी आप रसोई पकाते हैं तो उससे आप, उसमें भी आपको पाप बंद होता है, एक लिए की जीव की हिंसा करते हैं, लेकिन वो आपको जीवन की जरूरियात है। लेकिन ये अनर्थ दंड के पाप है, कई सारे पाप है, हम जो भी आप बोले हैं, ड्रिंक्स लेना, तालाब में स्नान करना, मूवीज देखने जाना, और चलो अभी आपको अंधेरा है और आपने लाइट जलाया, ठीक है, लेकिन कि अपने बच्चों की तो खास आदत रहती है, एक रूम में से दूसरे रूम में जाएंगे, लाइट पंखा बंद ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है, विदाउट रीजन लाइट पंखा चलता है, आपका और देवकाय की आपका नहीं, सॉरी, वाव का और देवकाय की जीव की हिंसा होती रहती है। तो ये सब जो है ये क्या है, अनर्थ दंड है। तो ये अनर्थ दंड से, पाप से हम बच सकते हैं, थोड़ी हम जागृति रखें तो ये 3 गुणव्रत हुए। और फिर उसके बाद 4 शिक्षा व्रत। ये शिक्षा व्रत से हमको संयम धर्म के पालन की शिक्षा मिलती है, कि अभी अभी तो हम संयम ग्रहण नहीं कर सके, संयम यानी पूरा 5 महाव्रत, लेकिन हम उसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें 4 आते हैं। 9वां सामायिक व्रत, जो हम बोलते हैं सामायिक लेते हैं, जिसमें हम 48 मिनट तक, हमने पहले ही देखा कि समणो एवं सावो हवई जमा, कि साधु तुल्य मानते हैं 48 मिनट तक। तो वो 9वां सामायिक व्रत हम ग्रहण करते हैं, उसमें जो हमारा कुछ भी मन वचन काया से जो अतिचार हुए है, दोष लगे, अतिचार मीन्स जो भी दोष लगा है, तो उसको हम क्षमा मांगते हैं। फिर देशावगासी, जो बोलते हैं देशावगासी यानी इतने दिन में कुछ 8 सामायिक करना, ऐसा कुछ होता है। फिर पौषधोपवास, जो पौषध करते हैं तिथि के दिनों में, जनरली मीन्स 24 घंटे का होता है, मैंने कभी नहीं किया है, लेकिन उपवास करके उपाश्रय में ही रहने का, और साधु तरह ही वो जो सामायिक हम 2 घड़ी का करते हैं,
इसी तरह इधर क्या करना है, पूरा 24 घंटे तक ये साधु की तरफ रहना है, वो पौषध व्रत बोलते हैं। तो ये 11वां व्रत है। उसमें जो भी हमारे दोष हुए उससे हम इच्छामि दुक्कडम जो किया है। और लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत, यानी कि अतिथि संविभाग, अतिथि यानी इधर पंच महाव्रतधारी, उसका संविभाग करना मीन्स वो जब भी आते हैं तो उसमें हम कैसा उनको, जो गोचरी का जो नियम है 42 दोष के रहित, कैसा उनको गोचरी बोराना है, उसमें जो हमारे कुछ दोष लगे हो जो साधु के, तो उसके लिए ये 12वां व्रत है। तो ऐसा ये जो 12 व्रत में जो जो भी हमारे अत्याचार हुए हैं, यानी कि जो भी हमारे दोष हुए हैं, तो ये हम प्रतिक्रमण चौथे आवश्यक के सूत्र में इसकी क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसे 4 आवश्यक कंप्लीट हुए। अभी ये हमने पाप की आलोचना की, चित्त की शुद्धि की, और मैं इसे वापस रिपीट करती हूँ कि ये हमको क्या करना है, पूरा समझ पूर्वक एक एक अतिचार दोष बोलते हैं तो उनको याद करना है कि मेरी ऐसा तो कुछ मेरा से आज पाप नहीं हुआ है जानते कि अनजाने में, तो हम मन वचन कैसे उसका क्या करते हैं, इच्छामि दुक्कडम करते हैं। तो इधर आप क्या करते हैं, इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में बोला कि ये करने से क्या होता है कि जो आपके पाप हो गए, आप उसकी जो क्षमा मांग ली, तो वो क्या होंगे, निकाचित नहीं होंगे और निधत्त कक्षा के रहेंगे। और इसका क्या फायदा होता है कि ये निधत्त कक्षा के पाप वो आप बिना उसका बिना भोगे भी उसको क्षय कर सकते हैं, जब तक वो सत्ता में है, साधना तप वगैरह करके उसकी निर्जरा कर सकते हैं। तो ऐसा ये मीन्स आपकी जो आत्म विशुद्धि की प्रकृतियां है, ये पहले ही बोला प्रतिक्रमण, तो आपके जो पुराने कर्म है उसकी भी आप निर्जरा कर सकते हैं। तो ये कैसा, तो अभी ये कायोत्सर्ग में होएगा कि अभी आपकी चित्तवृत्ति तो शांत हुई है, थोड़ी शुद्ध हुई है, क्योंकि आपने पाप की आलोचना की है। तो अभी आगे आपकी जो पुराने कर्म है आपके जो पड़े हैं, उसके निर्जरा के करने के लिए, मीन्स आत्मा की विशुद्धि करने के लिए, सूक्ष्म दोष के नाश के लिए, ये तो चलो स्थूल दोष तो हमको दिखते हैं, उसका तो हमने क्या किया, सबका इच्छामि दुक्कडम कर लिया, लेकिन फिर भी कई सूक्ष्म दोष हमारे में पड़े हैं। तो इसके लिए ये बहुत सुंदर प्रक्रिया जैन शासन में कायोत्सर्ग की बताई गई है। कायोत्सर्ग ये संस्कृत वर्ड है, कौसक ये हम कौसक जनरली बोलते हैं, ये प्राकृत वर्ड है। तो कायोत्सर्ग, तो काया प्लस उत्सर्ग, काया यानी शरीर और उत्सर्ग यानी क्या, उसको शरीर का त्याग करना। तो अभी हम शरीर का तो त्याग नहीं करने वाले हैं ना, हम तो अभी हमारा आत्मा भी ये शरीर में ही है, जीवित है हम अभी। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि इसका काया का उत्सर्ग करना है, ऐसा क्यों बोला है? तो इसका क्या, इधर उत्सर्ग का अर्थ त्याग जरूर होता है, लेकिन त्याग किसका करना है, तो काया में शरीर प्रति जो ममत्व भाव है उसका यहाँ त्याग करना है, बराबर। जो हमारा जो ममत्व भाव है, ये ममत्व भाव के कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ममत्व हमको होता है तो हमारे शरीर के प्रति, हमारे सब जड़ और चेतन आजू बाजू जो भी चीजें, स्वजन आदि, घर आदि, उस पे तो ममत्व है ही, लेकिन सबसे ज्यादा ममत्व किस जीव को है, तो खुद के शरीर प्रत्येक। और ये कायोत्सर्ग में काया प्लस उत्सर्ग यानी शरीर प्रत्येक, ये जब तक मैं कायोत्सर्ग में हूँ तभी तक मैं शरीर प्रत्येक का जो ममत्व भाव है उसका त्याग कर रहा हूँ। ये जो कायोत्सर्ग की प्रक्रिया ही क्यों है, ये पूरा देह भाव का त्याग करके आत्म भाव में स्थिर होने के लिए ये सुंदर प्रक्रिया बताई गई। तो अभी अभी जबकि हमको ये करना तो मन वचन काया तीनों का योग का स्थिर करना है, लेकिन सबसे पहले तो काया की स्थिरता जरूरी है। हमेशा काया की हलन चलन करेंगे और तो नहीं हो सकेंगे।
तो पूरे शरीर को, इवन लिप्स की मूवमेंट भी नहीं करनी है। बहुत जन कायोत्सर्ग कौसक करते हैं लेकिन ऐसे बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि हम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम ओसिरामी बोलते हैं। मीन्स काया से भी हम स्थिर होते हैं, वचन से भी हम कुछ बोलते नहीं, और मन से भी हम पूरे अप्पाणम ओसिरामी मीन्स हम हमके ये शरीर को वोसराते हैं। तो हम काया की स्थिरता वड़े, मौन वड़े, ध्यान वड़े आत्मा को क्या करते हैं, मैं मेरे पाप व्यापार से मुक्त करता हूँ। ऐसी भी पूरा हम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम, झाणेनम मीन्स ध्यान वड़े, अप्पाणम बोसिरामी, मैं मेरा आत्मा को पाप व्यापार से त्याग करता हूँ। और क्या करता है, आत्मा भाव में इधर स्थिर होना है, देह भाव का त्याग करना है। और क्या अपना भाव होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर देह ये मैं नहीं हूँ। और कैसा है ये आत्मा, मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मीन्स मैं कभी भी मेरा मरण नहीं हुआ है। तो ये और मेरी काया कैसी है, इससे एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसी है, नाशवंत है, बराबर है, अनित्य है। ऐसी मेरी काया है, ये पुद्गल की बनेली है, और ये पुद्गल की बनी हुई काया से मैं क्या हूँ, संपूर्ण भिन्न हूँ। तो ऐसे जड़, और ये जड़ मीन्स ये देह और हमारे चेतन आत्मा से भेद ज्ञान करने के लिए, और ये भेद ज्ञान करके ध्यान में जाने के लिए, मेडिटेशन ध्यान में यही करना है हमका। आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं तो ये भेद ज्ञान करना जरूरी है, और इसके लिए कायोत्सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो ये क्रिया में हम क्या करते हैं, इसमें कौन सा पहला सूत्र है, तस्स उत्तरी सूत्र दिए है, वो कायोत्सर्ग का प्रतिज्ञा सूत्र है कि पाप संबंधी प्रायश्चित करी अने शुद्धि करने के लिए, बोलते हैं ना तस्स उत्तरी करणम पायच्छित्त करणम। पायच्छित्त मीन्स पाप के संबंधी जो है उससे शुद्धि करने के लिए, पायच्छित्त करणम विसोहीकरणम विसल्लीकरणम, हमारा जो शल्य हुआ है उससे शुद्ध होने के लिए, करणम पावाणम कम्माणम निगाणम मीन्स पाप कर्मों के नाश करने के लिए मैं ये कायोत्सर्ग की क्रिया कर रहा हूँ। प्रतिज्ञा करता है, क्या प्रतिज्ञा करता है साधक, ये कायोत्सर्ग की क्रिया के दरमियान मैं काया, मन और वचन से मौन रहूंगा। वो मन से भी, यानी मन से भी कोई अशुभ विचार नहीं करूंगा, और पूरे अशुद्ध ध्यान से मुक्त होके मैं जिनम मीन्स क्या करूंगी, वो कौसक ध्यान में मैं स्थिर होऊंगा। तो ऐसे ये कौसक की पूरी ये क्या दिया है, क्रिया दिए है। अभी जनरली ये कौसक जो जिनम मुद्रा हम बोलते हैं, खड़े खड़े, वो मुद्रा में हम कौसक करते हैं। तो इसमें मैंने बोला कि पूरी स्थिरता अपेक्षित है। और जनरली हम हमारा जो एक लोगस का कौसक है, जब भी हम मीन्स प्रतिक्रमण में 4 लोगस का कौसक आता है, 5 लोगस का कौसक होता है। और सबसे पहले हम जब इरियावे जो बोलते हैं, इरियावे का सूत्र हम चैतवंदन के पहले भी बोलते हैं, सामयिक लेने के पहले भी बोलते हैं। तो वो पूरे सूत्र में हम क्या करें, एक लोगस का कौसक बोलते हैं। तो ऐसे ये कौसकता बार बार आता है। और प्रतिक्रमण में जो ये 5वां आवश्यक है, इसमें हम 4 लोगस और 5 लोगस का कौसक। तो जो 4 लोगस का कौसक है वो दिवस संबंधी जो भी पाप है तो उसमें शुद्धि करने के लिए 4 लोगस का कौसक आता है। और 5 लोगस का कौसक है वो दुख क्षय और दुख क्षय कमक क्षय, यानी दुख का क्षय करने के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए हम 5 लोगस का कौसक करते हैं। 5 ये हुए हमारे आवश्यक हुए। बस अभी लास्ट आवश्यक है, छठा आवश्यक पचखाण यानी प्रत्याख्यान। तो अभी चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक और 5वां कौसक आवश्यक से क्या होता है,
जो पूर्व जो कर्म है वो क्या हुए, नाश हुए। तो अभी जो भविष्यकालीन कर्म आते हैं, हमने देखो क्या किया, पहला जो सामायिक से जो कर्म आ रहे थे उसको हमने रोक दिया, संवर किया। फिर ये प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान से क्या किया हमने, प्रत्याख्यान से प्रतिक्रमण आवश्यक से जो पूर्व बंधे जो कर्म ऑलरेडी बंधे हैं हमारे, उसके भी हमने क्या किया, क्षय किया, नाश किया। और अभी ये तो हो गया, लेकिन अभी नए कर्म भी नहीं आने चाहिए। तो भविष्यकालीन कर्म न आए उसका निरोध करने के लिए ये छठा प्रत्याख्यान अथवा तो पचखान, जो संस्कृत प्राकृत वर्ड है, प्रत्याख्यान संस्कृत वर्ड है, तो यो यहाँ बताया गया है। तो ये जो है प्रत्यय, इसका अर्थ होता है, सीधा हम प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, पचखान यानी। तो इधर हम क्या प्रतिक्रिया लेते हैं, आहार पानी, जो चतुर्विध आहार है उसका त्याग करने की, हम जनरली दिन में जो प्रतिक्रमण करके लास्ट हम क्या लेते हैं, चौबियार का पचखांड लेते हैं। तो चौबियार में चारे आहार जो हम बोलते हैं, अनाज, पानी, फिर वो खाइमम साइमम जो हम बोलते हैं कि इलायची वगैरह जो फ्रूट है जिससे पेट नहीं, वो सब प्रकार के आहार का हम त्याग करते हैं। तो उसको हम प्रतिज्ञा इधर ये लेती है। अभी इसमें है ना, ये हम देखते हैं कि ये लोक में अनंत पदार्थ है, और अनंत पदार्थ है, उसमें सामने हमारी इच्छा भी अनंत है ये सब पदार्थ को भोगने के लिए, पंचेंद्रिय के विषय के भोगने के लिए। तो अभी ये हम जब ये पचखांड लेते हैं तो तभी ये अनंत पदार्थों को जो हमारी भोगने की जो वृत्ति होती है वो ये पचखांड से सीमित होती है। तो इसीलिए ये पचखांड हमको बोला गया है। तो क्या होता है इससे कि जो हमारी अनंत, सपोज चौबियार का पचखांड लिया तो क्या है, अभी पूरी रात भर हम किसी प्रकार का आहार, भले एकदम हमको अच्छे से अच्छा हमारा मनगमता अच्छा आहार हो, फिर भी हम नहीं खाने वाले हैं। तो इसीलिए हमको क्या होता है, पचखांड लेने से हमारा मन, वचन और इंद्रियों को हम संयम में रख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जो आश्रव आश्रव यानी कर्मों का आना, उससे क्या होता है, उसका द्वार बंद हो जाता है, अर्थात संवर होता है। तो ये ऐसा हम बोलते हैं कि पूरा हमारा जो ये लास्ट आवश्यक हुआ, पचखान आवश्यक हुआ, तो इसको हमको विचार करता है कि ये जो आवश्यक है इसको सबसे लास्ट क्यों रखा गया है पचखान को। तो ये पूरा जो 6 आवश्यक की क्रिया है सुंदर क्रम से बताई गई। सबसे पहला क्या है, सामायिक है। सामायिक से हम पाप की निवृत्ति करते हैं और हम समभाव द्वारा हम 6 काय के जीव को रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी हमारा संवर धर्म शुरू होता है। फिर चतुर्विंशति स्तवन जो दूसरा आवश्यक है, उसमें हम क्या करते हैं, 24 भगवानों की स्तुति करते हैं। फिर वंदना द्वारा गुरु भगवान को वंदना, उनका बहुमान करते हैं। उसके बाद में देव और गुरु को वंदना करने के बाद अभी प्रतिक्रमण चौथे आवश्यक में जो स्थूल दोष है उसकी आत्मनिरीक्षण करके उस दोषों की हम क्षमा मांगते हैं, निंदा करते हैं, गर्हा करते हैं गुरु के समक्ष, और पुनः न करने का निश्चय भी करते हैं। अभी कायोत्सर्ग पांचवे आवश्यक में वो भूल का प्रायश्चित करते हैं, और जो सूक्ष्म भी दोष है उसका भी हम उसके कायोत्सर्ग से क्या करते हैं, हम दोष का नाश कर सकते हैं। और लास्ट जो ये अब फिर आवश्यक सकता है कि हमारी आत्मा की अभी शुद्धि तो हुई है, पाप जो हमने किए थे, लेकिन अभी भविष्य में वापस हम पाप न करें, इसके लिए तप और त्याग करने का भी निश्चय है। हम जब सुबह में पचखांड लेते हैं, रात में तो हम लेते हैं कि 24 का पचखांड लिया, लेकिन सुबह में हम कम से कम नवकारसी का पचखांड लेते हैं। नवकारसी यानी जनरली हम 24 का पचखांड लेते हैं तो सूरज उगने तक, लेकिन जो नवकासी का पचखांड होता है वो सूरज उगने के बाद 48 मिनट तक यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, नो आहार पानी, तो उसको नवकारसी बोलते हैं, वो कम से कम है। फिर तो आप कोरसी,
साड़पोरसी, एकासना, बियासना, आंबिल, उपवास, कोई भी आप पचखान ले सकते हैं। तो ऐसा ये 6 जो आवश्यक है ये तप और त्याग के लिए। तो ऐसे हम देखें तो ये पूरी जो 6 आवश्यक की क्रिया है इतना सुंदर क्रम से बताई गई है कि जिसमें आलोचना है, प्रायश्चित है और फिर पचखान की जो प्रक्रिया, इतनी सुंदर प्रक्रिया हम देखें तो जैन धर्म के सिवाय और कोई धर्म में ऐसी प्रक्रिया नहीं। हम क्रिश्चियन में भी देखें तो उसमें कन्फेशन होता है, लेकिन ये पूरा जो ये क्रम के लिखा है वो हमारे जैन धर्म में ही है और इसीलिए और रोज करना है। ऐसा भी नहीं कि एक दिन करके छोड़ देना है, रोजे रोज करने की वो क्रिया है कि रोज आपके पाप होते हैं तो रोज आप वो पाप से क्या हो, आप मुक्त हो। लेकिन हम 8 दिन तो 8 दिन भी करते होंगे, देखा देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक, कि चलो हम रोज तो नहीं कर सकते हैं तो हमारे जो पूरे साल भर में जो पाप हुए हैं उससे तो हम क्या हुए पीछे हटे और वो जो प्रतिक्रमण की क्रिया करते हैं वो प्रतिक्रमण की क्रिया हमारी द्रव्य प्रतिक्रमण न होके भाव प्रतिक्रमण हुए। इसीलिए हमने आज ये का स्वाध्याय किया है कि जो भी आप प्रतिक्रमण की क्रिया करने जाओ वो पूरे भाव पूर्वक, पूरे उल्लास पूर्वक करना, तो उसके वो मोक्ष फलदायक होंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ बुलाया हो तो इच्छा में दुक्कड़म। ओके, और सबको पर्युषण की आराधना के लिए खूब खूब आप सब उल्लास पूर्वक करो। अभी हमारा पर्युषण चालू हो रहा है 12 तारीख में, 12 तारीख मीन्स ट्यूसडे है, तो वी कैन टेक ऑन अगेन मंडे 11th को। अभी ये दूसरा मंडे आज है और तीसरा भी मंडे ही, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम ही था ट्यूसडे को, लेकिन सबको पर्युषण की आराधना करनी होगी तो वी विल डू ऑन मंडे ओनली 11th को। और उस दिन हम जो वापिस हमारे 2 भगवान देवचंद्र जी महाराज के जो स्तवन चालू हैं, तो 2 भगवान के स्तवन कंप्लीट हुए हैं। हम लोग जो तीसरा संभवनाथ भगवान का स्तवन है उस दिन स्टार्ट करेंगे और फिर जो मंडे फिर है 19 तक पर्युषण चालू है। पर्युषण में हम क्लास नहीं लेंगे, तो उसके बाद में वी विल स्टार्ट। मुझे लगता है उसके बाद में भी वेडनेसडे वो वीक में तो सबका किसका तपश्चर्या वगैरह होएगी, पारना वगैरह होएगा, तो तभी हम नहीं करेंगे, तो वो वीक जाने देते हैं और फिर हम उसके नेक्स्ट वीक हम जो भी ट्यूसडे है उस ट्यूसडे से मिलेंगे। तो अभी हम मिल रहे हैं 18th को बिफोर पर्युषण मंडे को, और उस दिन हम संभवनाथ भगवान का स्तवन स्टार्ट करेंगे। मैं उसका जो स्तवन की जो पूरा स्तवन और उसका मीनिंग वो 1-2 दिन में मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, हमारे ग्रुप में। ओके, जय जिनेंद्र सर को कुछ को किसको पूछना है कुछ? नहीं, बहुत सरस, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि बहुत बार ये 5वां आवश्यक होता है जो फटाफट करने के लिए लगाते हैं। मुझे स्लो करना होता है, आराम से गिनना होता है, पर अभी से मैं अपने मन को दृढ़ कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत शिक्षा बेन है? नहीं मैं दिव्या। एक्चुअली आज का पूरा लेक्चर हिंदी में शिक्षा बेन के लिए लिया गया है। यूएस की है अभी, ये टाइम में वो उन्होंने कैसा ज्वाइन किया है थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। और वो उनको गुजराती नहीं समझ आती है, इसलिए मैंने पूरा लेक्चर हिंदी में लिया। लिंदा तो सबको समझती हिंदी, तो इसलिए आई थिंक इट्स ऑल है। ओके, चलो कितने बजे शिक्षा बेन? 3:37। हाँ, 3:37। आप 3:37 को आप जो जाग रही है, तो फिर मैं इतना तो हिंदी में बोलूंगी। दूसरे लोगों को तकलीफ हुआ था उसके लिए सॉरी। नहीं, सब समझेंगे। नहीं, तो सबको हम समझते हिंदी में है। सबको समझ ओके, चलो, थैंक यू रश्मि बहन, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू।